Hello guys, welcome to my channel. So this is a tarot reading and we all know कि कभी कभी हम मतलब हम नहीं जान पाते हैं what a person is thinking or what their intention are towards us. But tarot is a key to connect with that person, to know about them, to know what are they think about us, their intention towards us. So this is a medium to connect you with that people, that person you are thinking about. So I got an intuitive message to work on what your person's true intentions are. This means कि जो भी आपके पर्सन है आपके दिमाग में, he can be anyone. Your ex, your present partner, the person you are dating, separated, no contact, less contact. Let's see what are their true intention towards you. Like ऐसा होता है कभी कभी कि we don't know कि सामने वाला सोच क्या रहा है and what they are showing us. So today we are going to see their true intention. Let's see their action, their words are complying with their thoughts, inner thoughts. So take a deep breath, close your eyes, take a deep breath in, release. Take their name 3 times. Close your eyes, imagine their photos or their pictures or their face in front of you, or take their name 3 times. So let's get started. True intention towards my viewers. True intention. The High Priestess. Six of Swords. Seven of Pentacles. Their true intentions. 8 of Wands, 7 of Wands, 9 of Swords in bottom of the deck. So we will come up to that. So what I am seeing here is we got High Priestess, 6 of Swords, 7 of Pentacles, 8 of Wands and 7 of Wands. I think this person have been, I think there is a no contact situation. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग के बीच में अभी बातें नहीं हो रही हैं, but there is an energy which is connecting towards them, और उनकी एनर्जी आप तक पहुंच रही है, आपकी एनर्जी उनके तक पहुंच रही है. आई एम गेटिंग दिस. ठीक है, अगर आप लोग के बीच में अभी बातें नहीं हो रही हैं, बट हाई प्रीस्ट्रेस मीन्स एनर्जी कनेक्शन विच इज़ इन द एनर्जेटिक वे. मतलब आप फिजिकल वे में बात नहीं कर रहे हैं, पर वो जो आपका जो आपकी एनर्जी है, जो आपका सेंस है, वो उनकी एनर्जी को फील कर पा रहा है. सो आई एम सीइंग कि दोनों तरफ से यू बोथ आर फीलिंग ईच अदर in this no contact situation. But if we talk about their true intentions towards you, so I think they want to come towards you to start a new beginning. अगर no contact situation है, so they want to start a new beginning. ठीक है, जो भी पिछली चीज़ें थी उन्हें उससे move on करना है, because bottom of the deck is 9 of Swords, which is giving them a lots of pain, anxiety. कोई हैप्पीनेस नहीं है उनके लाइफ में, बहुत नेगेटिव एनर्जी है, वो खुश नहीं रह पा रहे हैं. 8 of Wands, दिस मीन्स कम्युनिकेशन, अ स्पीडी एक्शन टूवर्ड्स यू. आई सॉ 555 या. सो गाइज, उन्हें ये लगता है कि उन्हें बात करनी होगी आपसे. ठीक है, आपने मे बी कोई बाउंड्री बनाई है. 7 of Wands, मे बी आपने कोई बाउंड्री बनाई है जिसमें आप उनको एंट्री नहीं करने दे रहे. ठीक है, सो दैट इज मेकिंग a problem in this relationship. So their true intention is कि वो आगे चीज़ें लेके चलें, वो आपको आगे लेके चलें, वो आपके साथ आगे बढ़ें. but the problem is the boundary. there is a boundary जो मे बी आपने क्रिएट की है. जब तक ये बाउंड्री रहेगी ना, इट
क्योंकि वो अभी वेट कर रहे हैं. 7 of Pentacles इज अ वेटिंग. ओके, दे आर वेटिंग कि कब वो आपसे कम्युनिकेट कर पाए, कब वो आपसे बात कर पाए, कब कोई एक्शन हो पाए. क्योंकि जब तक ये बाउंड्री रहेगी ना, जब तक ये बाउंड्री रहेगी तब तक कोई कम्युनिकेशन, कोई एक्शन आपके साथ नहीं होगा उस पर्सन को लेके. ठीक है. सो यू नीड टू अगर आपने सही में कोई बाउंड्री ऐसी क्रिएट की है, आप उनको जानने का मौका नहीं दे रहे हो खुद को, सो दैट कैन बी अ प्रॉब्लमैटिक. ओके, क्योंकि यहाँ पे इनके इंटेंशंस आपके साथ आगे बढ़ने के हैं, आपसे बात करने के हैं, लेकिन देयर इज़ अ बाउंड्री जो आपने ही शायद क्रिएट की है एंड दैट इज़ नॉट गिविंग देम अ गुड फीलिंग. ओके, दे आर इन पेन. और मे बी वो अभी वेट कर रहे हैं कि क्या कोई चीज़, मे बी आप अपनी बाउंड्रीज हटा दो, मे बी आप चीज़ें ठीक करने की कोशिश करो. ओके, बट you both are feeling each other. Okay, let me see more. What are their true intentions? They want a stability. उनको stability चाहिए आपसे, उनको आपके साथ आगे बढ़ना है. They have a true intention to go with you. आगे भी आपके साथ आगे जाना है उनको. The Sun, the most positive card, means they want a long-term commitment with you, yaar. They have a positive feeling towards you. They don't have any negative or bad intention towards you. They love you, and this card is very much positive, and this shows ki how much they have love towards you. Okay, they have so much love, so much happiness, so much positivity towards you. But the problem is the foundation, the boundaries which is being created in this relationship. Ten of Wands. I said now something is making them burdened on their relationship. कोई तो ऐसा बर्डन है जो उनके ऊपर है इस रिलेशनशिप को लेके, जो चीज़ वो लेके चल नहीं पा रहे हैं आगे, वो आगे लेके जा ही नहीं पा रहे. वो आप दोनों बेटर जानते होंगे कि what type of burden and stress they are getting. Okay, let me see. Why 10 of Wands, universe? Why 10 of Wands? Please clarify. Why 10 of Wands? Why 10 of Wands? Oh my God. 4 of Wands. This card is a twin flame card, but not everybody can be in a twin flame. But the burden is the relationship. What type of burden? I already told you that कुछ तो रिलेशनशिप में ऐसी बाउंड्रीज हैं, कुछ ऐसी बाउंड्रीज हैं जिनको वो वो एक्शन नहीं ले पा रहे, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो उस चीज़ को लेके बस वेट कर रहे हैं, खड़े हुए हैं कि यार चीज़ें ठीक हो जाएं, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ जाएं, कुछ चीज़ें चेंज हो जाएं कि वो यहाँ तक पहुँच पाए, यूनियन तक पहुँच पाए, रीयूनियन तक पहुँच पाए, सेलिब्रेशन, कमिटमेंट, मैरिज तक पहुँच पाए. तो जब मैंने 10 of Wands का क्लैरिफाई किया ना, तो ये आया रिलेशनशिप में जो भी बाउंड्रीज हैं, जो भी कमिटमेंट इश्यूज हैं, जो भी मैरिज इश्यूज हैं, मे बी आप कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं हो रहे, आप मैरिज के लिए तैयार नहीं हो रहे, आपने कुछ ऐसी बाउंड्री बना दी है कि वो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो उनको चाहिए कि ख़त्म हो. जब तक ये चीज़ बाउंड्रीज नहीं ख़त्म होंगी ना, कोई भी पॉजिटिवनेस नहीं आएगी, बहुत चीज़ें प्रॉब्लमैटिक होके गुजरेंगी. ठीक है. देयर ट्रू इंटेंशन आर जस्ट हैविंग अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज. और अगर उनको ये चीज़ नहीं मिलेगी ना, तो वो कट ऑफ करने में बिल्कुल सोचेंगे नहीं. एंड आई एम सेइंग दिस, वो बिल्कुल नहीं सोचेंगे. ओके, सो आई थिंक द प्रॉब्लम इज दी बाउंड्रीज. अब वो बाउंड्रीज में भी आपकी तरफ से हैं. ओके, लेट मी सी सम मैसेज, ओरेकल मैसेज. I miss our inside jokes. They miss you in this no contact situation. They really miss you. They miss you. They miss the moments they have spent with you. I think this is no contact situation. Okay, and the true intentions are very good for you. बस कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपके रिलेशन में जो सॉल्व होने की ज़रूरत है. Oh God, ego. I said ना, कुछ तो बाउंड्री है, and this can be ego also. आपकी बाउंड्रीज भी हो सकती हैं कि आप ईगो ला रहे हो बीच में इस कनेक्शन में. ईगो आ रहा है, बाउंड्रीज आ रही हैं, कमिटमेंट इश्यूज आ रहे हैं.
आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू. सी आई सेड ना, आई सेड कि वो हाई प्रीस्ट्रेस आया था कि आप लोग एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो एक दूसरे से, आप लोग एक दूसरे को फील कर पा रहे हो हमेशा, भले ही आप नो कॉन्टैक्ट में हो. वाओ, आई जस्ट लव व्हेन माय कार्ड्स गेट कनेक्टेड विथ एवरी कार्ड्स. वन लास्ट मैसेज. अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स. उन्होंने जो भी सोचा था इस रिलेशनशिप को लेके वो वैसा नहीं गया. मैंने कहा था ना, उन्होंने लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज और चीज़ें आगे बढ़ते हुए देखा था, पर वो ऐसा नहीं गया. एंड दे डिडंट टेक अ मिनट ये कट ऑफ करने में. ओके गाइस, यू शुड, क्या बोल सकते हैं, नॉट एवरी टाइम. ओके, वन लास्ट मैसेज. The way you love can never be replaced. They also know कि आप प्यार करते हो उनसे. They know that you both love each other. But ये जो boundaries आ रही है ना, they are not getting it why. They are not getting it why. Okay, this is my handmade card क्योंकि अभी मैं टैरो में न्यू आई हूँ. So I'm just doing my, oh my god, despair. They are very sad guys. They are very sad. They are not happy with being alone and in no contact. Okay, if you are thinking कि वो बहुत खुश है या वो ऐसा चीज़ दिखा रहा है ना, so it is wrong. They are not happy. They miss you. One more card, universe. Our last message. Main female. They see you as a beauty, a main female in their life. A happiness means you are the person जिसकी वजह से वो खुश हैं. अगर आप नहीं हो तो खुशियाँ नहीं है, और जो कि मैं इस कार्ड में देख सकती हूँ. They see you as a main part in your life. आपको वो अपने पास देखना चाहते हैं. आपसे ही उनकी लाइफ शुरू है. Missed opportunity. I didn't act when I should have. उनको ये भी लग रहा है कि जहाँ पे उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी ना कि चीज़ें उनके हिसाब से नहीं जा रही हैं, तो दे शुड कम्युनिकेट विथ यू. पर उन्होंने ये नहीं किया. वहाँ से उन्होंने कट ऑफ करने की कोशिश की, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लाया उन्होंने, और उन्होंने अपनी बातें नहीं की. उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया. एंड आई होप कि थोड़ा लंबा टाइम हो गया आप लोग को बिना बात किए. ओके, बट दैट टुडे वी आर डिस्कसिंग ओनली ट्रू इंटेंशन. मैं उनके एक्शंस नहीं देखूंगी कि नेक्स्ट एक्शन क्या है, बट दैट ट्रू इंटेंशन आर जस्ट दे आर इन लव विथ यू एंड दे वांट अ लॉन्ग कमिटमेंट विथ यू गाइज. लॉन्ग कमिटमेंट. ओके, लेट्स सी सम. ओके, आई विल सी वन यूनिवर्स गाइडेंस. यूनिवर्स, what guidance you will give to my viewers, please? One guidance. One guidance. Ace of Swords. This talks about thinking, clarity, truth, communicating. This means you should communicate. You should come up with the clarity कि problem आ कहाँ रही है. Talk to them, clear the problems, communicate with them, discuss your problems कि problems हैं क्या, क्या problems हैं. आप एक दूसरे से बात करो, clear करो, क्योंकि इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी. सो अगर आपको एक न्यू बिगनिंग चाहिए ना इस रिलेशनशिप में, तो स्पिरिट आपको गाइड कर रहा है कि अभी भी चीज़ें ख़राब नहीं हुई हैं. अपने माइंड से अपनी चीज़ों को क्लियर करो, उनसे कम्युनिकेट करके, उनसे बात करके, और अपने पॉइंट्स को सरफेस पे रखो, उनको भी और आपको भी, क्योंकि जब तक आप ये चीज़ नहीं करोगे ना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत बढ़ेंगी. सो यू हैव टू कम्युनिकेट क्लियरली टू देम. ओके, सो आई होप इट मे और मे नॉट, मतलब ये टैरो है. ओके, इट मे नॉट रेजोनेट विथ यू, बट इफ इट हैज़ बीन रेजोनेटेड विथ यू, please like and subscribe my video, and I will come up with more new videos, but do like and subscribe my video please. I hope you like my reading. Thank you.